ناظرین، دل کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کثرت سے پانی پینے کی عادت بنا لیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہے، عزت اور جوانی۔ اگر زیتون کا تیل ناپ میں لگایا جائے تو اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ مفید طالبین نامی کتاب میں ہے کہ من نقل الیک نقل عنک، یعنی جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کرتا رہتا ہو، ایسے شخص کو دوست ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ یہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی بیان کرتا ہوگا۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ اپنی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں یاد رکھیں: اللہ پر حسن ظن اور یقین رکھنا، مسلسل محنت کرنا، اور سعی کو حاسدوں سے مخفی رکھنا۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیے، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم میں شفا ہے، صدقہ میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ ناظرین، سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ ہاضمے کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت دفاع میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ آج کل کی نسل میں بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہے۔ بانجھ پن دور کرنے میں اخروٹ مددگار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی باکثرت پیے، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائے گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیے۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ کھیرا استعمال کرنے سے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی۔ آپ جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کریلا ہے۔ شوگر کے مریض کریلا ضرور کھائیں۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سون کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ باعث اجر نہیں ہوتا۔ صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں بآواز رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ تو بعد میں اس سے کہا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو، یا فرمایا صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ ناظرین، سٹرابیری کا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4 سے 5 خوشبوانیاں ٹاپی کی طرف چوس کر 1 کپ نیم گرم چائے پی لیں۔ یک بار ایسا کرنے سے افاقہ محسوس ہوگا۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں یا چہرے پر کہیں پر داغ ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے مستقل اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے اور دل کے دورے کا موجب ہے، اس لیے غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔
जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। रात को सोने से कबल वुजू करके सोया करें। डरावने ख्वाब कभी नहीं आएगी। इस्तिग़फ़ार की 3 तस्बीह रोजाना पढ़ा करें। इंशाअल्लाह कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाएं। 4 दिन के बाद चेहरा 20 साल जैसा हो जाएगा। अगर आप सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी लें तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात भी मिल जाएगी। नाज़रीन, कीड़ा जिस्मानी गर्मी को दूर करता है, बलहम को खारिज करता है, शुगर के मरीजों को आराम पहुंचाता है। बाकसरत पानी पीना कमर और गुर्दों के दर्द में बेहद मुफीद है। पानी में स्पेऑल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नजर तेज हो जाएगी। जिन लोगों की जिस्म में आयरन की कमी हो वो पालक जरूर खाएं। काजू का रोजाना इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारियों से हिफाजत में रहते हैं। गाजर मसाने की खराबियों को दूर करने के लिए फायदेमंद है। ज्यादा नमक मत खाएं वरना दिल कमजोर हो जाएगा। रोजाना निहार मुंह खजूर खाया करें। पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी। जले हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा देने से छाले नहीं बनते। नाज़रीन, हज्जाज इब्न यूसुफ खुलफाई बन उमैया का इंतहाई सफाक व होनखार जालिम गवर्नर था। उसने 1 लाख इंसानों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारा था और जो लोग उसके हुक्म से मादूम किए गए उनको कोई गिन ही न सका। बहुत से सहाबा और ताबीन को जिंदगी से महरूम या कैद व बंद रखा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, अगर सारी उम्मतें अपने अपने मुनाफिकों को क़यामत के दिन लेकर आए और हम अपने एक मुनाफिक हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी को पेश कर दे तो हमारा फल्ला बारी रहेगा। हज्जाज इब्न यूसुफ जब कैंसर की बीमारी में मरने लगा तो उसकी जुबान पर एक दुआ जारी हो गई और यही दुआ मांगते मांगते उसका दम निकल गया। दुआ ये थी, ए अल्लाह, तेरे बंदे बंदियां मेरे बारे में कहते हैं कि तू मुझे माफ नहीं करेगा, मगर मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू मुझे माफ फरमा देगा, मुझे माफ फरमा दे। खलीफा आदिल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह को हज्जाज इब्न यूसुफ की जुबान से मरते वक्त ये दुआ बहुत अच्छी लगी और उनको हज्जाज की मौत पर रिश्क होने लगा। और जब हसन बसरी रहमुल्लाह से लोगों ने हज्जाज की इस दुआ का जिक्र किया तो आप रहमुल्लाह ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या हुआ कि हज्जाज ने यह दुआ मांगी थी? लोगों ने कहा, जी हाँ, उसने ये दुआ मांगी थी। तो आप रहमुल्लाह ने फरमाया कि शायद खुदा उसको बख्श दे। नाजरीन, निहार मुंह किशमिश के 20 दाने खाने से आपका जिस्म सैकड़ों बीमारियों से महफूज रहेगा। सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं होगी। जो लोग सरसों का साग ज्यादा खाते हैं उनकी जिल्द चमकीली नजर आती है। मोटापे के शिकार लोग 3 चीजें अगर रोजाना खाएं तो दुबले फतले हो सकते हैं। लेमू, ज्वाइन और खुश्क में वजाल। मिश्री खाने से यादाश्त तेज होती है। फालज के मरीज रोजाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पी लिया करें। छोटी छोटी नेकियां ऐसी हैं जो चिवंडियों की तरह इंसान की परेशानियों को खा जाती है। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है, जबकि बुराई करने के बाद ही लिखी जाती है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल हरगिज न किया करें वरना मरज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। दांतों पर नीम की मसवा करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। बादाम, सौंफ और भुने हुए चने सोने से पहले खाने से जिंदगी में कभी जिस्मानी या दिमागी कमजोरी नहीं होगी। नाजरीन, चीनी वाले चाय पीने से बहुत जल्द मोटापा और शुगर इंसान को घेर लेता है। आलू बुहारा खून की कमी को फौरन दूर कर देता है और दिल को नफा देता है। ज्यादा बर्फ इस्तेमाल करने से मैदा कमजोर हो जाता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। लेमू छिलकों का पाउडर बनाकर उसमें नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों की मेल कुचैल और पीलापन दूर हो जाता है और दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं। नाजरीन, सफेद रंग के कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के बाज लोग केले को खुश्क करते हैं, फिर उसका आटा बना लेते हैं और पेट के मरोड़ और हाजमे की खराबी के लिए 1 चम्मच केले का आटा आधा गिलास दूध के हमरा लेते हैं। इससे उनको फौरी आराम आ जाता है। क्या आपको मालूम है कि आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं? खजूर के बाद पानी नहीं पीना चाहिए वरना हाजमा बिगड़ जाएगा। गाजर का इस्तेमाल करते रहने से जिगर के मरीजों को फायदा होता है। पेट की चर्बी को चंद दिन में पिघलाना है तो पानी में संतरे की बीज डालकर पी लें।
नाजरीन, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चादर यानी हदिया के तौर पर लेकर आई और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं चाहती हूँ कि आप इससे ज़िदतन फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर कबूल फरमाकर ओढ़ ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी कि उस वक़्त आपको उसकी ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक साहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चादर ओढ़े देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर तो बहुत ही अच्छी है, ये तो मुझे इनायत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, और वो चादर उसी वक्त उतार कर उन साहिब को दे दी। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठ गए तो बाद साथियों ने उस साहिब को मलामत की और कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद उसकी ज़रूरत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजतमंदी की हालत में ये चादर उस खातून से कबूल की थी, इसके बावजूद तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको मांग लिया। हालांकि तुम जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि जो चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे ही देते हैं। तो साहिब ने अर्ज़ किया, मैंने तो बरकत के ख्याल से ऐसा किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहन लिया था। अब मुझे उम्मीद है कि यही मुबारक चादर मेरा कफन बनेगी। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना 5 दाने इंजीर के खाएं। औरतें घर में चकोतरे की सब्जियां बनाएं, मुंह की जुरियां नहीं आएगी। भैंस के दूध में 3 खजूर के दाने डालकर पिए, रोज कद लंबा होता जाएगा। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में डालने से पहले आजमाइश में से निकलने का वसीला बनाता है। नाजरीन, काजू खाने से अकल बढ़ जाती है और नजर तेज होती है। सर पर पानी डालने से पहले एक चीज लगा लिया करें, कई सालों तक आपके बाल सफेद नहीं होंगे। नहाने से पहले सर पर जैतून का तेल लगाकर ऊपर से लस्सी के साथ नहाएं, बाल चमकदार और मजबूत हो जाएंगे। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर बैठने से जिल्द सख्त होती है। सूरज विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दाएं टांग कड़ी करके बैठकर खाना खाने से कभी गुर्दे फेल नहीं होते। जामुन की गुठली को जलाकर उसका धुआं लेने से कभी एलर्जी नहीं होती। रोज 3 कीड़े खाने से जिंदगी में कभी लकवा नहीं होता। दाएं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर टेढ़ी नहीं होती। नाजरीन, एक बार कपड़े पहनकर उसे नमकीन पानी से धोकर दोबारा पहनने से बदन पर कभी खारिश नहीं होगी। काला जीरा दूध के साथ खाने से जख्म जल्दी भर जाता है। तकिए के बाहर सोने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सोने से पहले दूध 1 चम्मच देसी घी में डालकर पीने से पूरे जिस्म का स्ट्रेस दूर हो जाता है। जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। नाजरीन, रात को हाले शहद के 2 चम्मच चाटने से जिस्म में कमजोरी दूर होती है और इससे आपको गहरी और पुरसुकून नींद आएगी। अगर होंठ फट जाए या गाल फट जाए तो बकरी का दूध निहार मुंह पिया करें। माथे पर बादाम का छिलका फेंस कर रगड़ने से दिमाग इतना तेज हो जाता है कि सालों बोली हुई चीजें भी याद आ जाएगी। रात के वक्त ज्यादा देर फोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। ये फोन की नीली लाइट की वजह से होता है। इससे आपकी नजर मुतासिर होती है। इसके लिए पीली रोशनी का फिल्टर नजर को मुतासिर होने से बचा सकता है। पेट बाहर निकल गया है तो सेब का इस्तेमाल करें। मुरई के फंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। पेट में कीड़े हों तो सेब खाकर ऊपर से पानी न पिए। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कच्ची चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में फतरी हो जाती है।